شب بارات رحمت مغفرت اور بخشش کی بابرکت رات شہر میں چراغاں فرزندان اسلام آج مساجد درباروں اور عبادت گاہوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر میں بھی شب برات جو ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شام کے اوقات میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف شہر کے مقامات پہ اسٹالز لگائے گئے تھے جن میں حلوہ پوری اور مختلف قسم کے جو حلوے ہیں وہ لوگ لینے آ رہے تھے، کیونکہ شہری جو ہے شام کے اوقات میں نظر و نیاز کرتے ہیں اور خریداری کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح شہر کے جو مختلف مقامات ہیں ان کو بھی مختلف روشنیوں سے روشن کیا گیا ہے، مختلف رنگوں کی لائٹس لگا کے روشن کیا گیا ہے۔ آج عبادت کی رات ہے تو مساجد میں بھی 8-9 بجے سے جو ہے محافل کا انعقاد ہوگا اور محافل شروع ہو جائیں گی۔ عبادت گاہوں پہ بھی جو ہے تیاریاں جاری ہیں اور شہری جو ہیں بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کرتے ہیں اور ساری رات جو ہے عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محافل میں جو ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رات اس کے کتنے ثواب ہے اس رات کا، اسی حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو انسان ہے اپنی مغفرت کا طریقہ اس رات میں کس طرح ڈھونڈ سکتا ہے، تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد عبادت گاہوں کا رخ کرتی ہے اور شہر کے مختلف مقامات کو جہاں پہ روشن کیا گیا ہے خوبصورت انداز میں اس رات کے لیے، وہیں پہ شہری جو ہیں مختلف مقامات پہ نظر و نیاز کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ گھروں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے، خواتین کی جانب سے جو ہے رات بھر عبادت کی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی مساجد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچوں کی جانب سے بھی صبح سے دیکھا گیا کہ تیاری کی جا رہی ہے کہ رات کو عبادت کرنی ہے اور شام میں جو ہے نظر و نیاز کرنی ہے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے۔ اس حوالے سے بچوں کی جانب سے بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے خریداری کی جا رہی تھی۔ حلوہ پوریوں کے اسٹال پہ دیکھا، یا گھروں میں جو خواتین ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کے حلوے بنانے کا سلسلہ جو ہے جاری رہا اور جہاں شہر کے مختلف مقامات کو اس رات کے صدقے روشن کیا گیا ہے، وہیں پہ عبادت گاہوں میں تیاریاں جاری ہیں کہ رات کو محافل ہوں گی اور رات جو ہے عبادت کی جائے گی اور مختلف علماء کی جانب سے جو ہے بیان بھی دیے جائیں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس رات کے لیے تیاری کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ جی بہت شکریہ الشبہ آصف، آپ ہمیں ملتان سے براہ راست اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ ناظرین، شب برات رحمت مغفرت اور بخشش کی بابرکت رات ہے۔ شب برات کے موقع پر بہاولپور کی عبادت گاہوں کو سجا دیا گیا۔ شہر بھر کی مساجد درباروں اور عبادت گاہوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ طاہر جودھیانہ سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شب برات کے موقع پر بہاولپور کی عبادت گاہوں کو سجا دیا گیا ہے۔ اس وقت برقی کمکمیں جو ہیں وہ آپ میرے رقم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے روشناس کیے ہوئے ہیں عبادت گاہوں کو۔ ہمارے ساتھ مفتی جاوید مصطفیٰ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت برکتوں والی رات ہے، کس طرح سے شہری جو ہیں اس رات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس نوعیت کی عبادات اور کیا فضیلتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بہاولپور میں جامعہ غوثیہ سعیدیہ خضرہ مسجد میں ہم موجود ہیں اور مسجد کو چراغاں کیا گیا ہے۔ پورے بہاولپور میں مختلف مساجد کو چراغاں کیا گیا ہے اور آج کی جو رات ہے شب بارات کی رات ہے، اور شب بارات میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کا جو رزق تقسیم کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں وہ رزق تقسیم فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ نے دنیا میں حج کی سعادت دینی ہوتی ہے وہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے، جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے وہ بھی فیصلے اللہ تعالیٰ اسی رات میں فرماتا ہے۔ بڑی ایک تعجب کن بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو وہاں اللہ تعالیٰ ہماری موت کو تحریر فرما رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ طاہر جودھیانہ، آپ ہمیں بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں بھی آج شب برات نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آج کی رات نہایت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ مساجد میں خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری ہے اور لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص علی شیخ۔ جی وقاص، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
जो बिल्कुल मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी आज शब बारात जो है अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद पर खुसूसी जो है वो लाइटिंग का एहतमाम किया गया और मसाजिद में इसके अलावा खुसूसी इबादत जो है वो की जाए। आज जो है क्योंकि मगफरत और रहमतों वाली रात है और बहुत ही अहमियत और फजीलत वाली रात है, तो इस रात के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है भावल नगर के मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी साहब। सर बताइएगा, आज बहुत ही फजीलत और अहमियत वाली रात है, इस रात के मौके पर हमें अपने रब से किस तरह जो अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी ही मुबारक रात है और आज की शब बारात हुर्फ आम में कहा जाता है, जबकि इसे लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है। बड़ी मुबारक वाली रात है और आज की रात रब्बे कायनात की रहमत आसमान रहमत से हर बंदा मोमिन के दरवाजे पे दस्तक देती है कोई मांगने वाला मुझसे जिसकी मांग को पूरा किया जाए, है कोई मुझसे मगफरत तलब करने वाला जिसको माफ किया जाए, बख्शिश कर दी जाए। और इसी तरह रब्बे कायनात की रहमत सदा देती है कोई ऐसा जिसको रिज्क चाहिए और उसके रिज्क में कुशादगी कर दी जाए। आज की रात रब्बे कायनात की रहमत जो है उरूज पर होती है और बंदा मोमन जो है अपने दामन को फैलाए हुए रब के हुजूर, रब के घरों के अंदर यानी मसाजिद का रुख करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, नमाज तस्बीह और इज्तिमाई खुसूसी दुआओं का एहतमाम होता है। कासिम अली शेख हमें बहावल नगर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में एलपीजी की सरकारी कीमत में मामूली इजाफे के बाद गरां फरोश बेलगाम हो गए। एलपीजी की सरकारी कीमत 219 से बढ़कर 226 रुपए तक गई तो गरां फरोशों ने कीमत बढ़ाकर 320 रुपए फी किलो कर दी। गाजी खान में एलपीजी की खुलेआम गिरा फरोशी जारी है। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि मार्केट में एलपीजी मनमानी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 219 रुपए से बढ़ाकर 226 रुपए मुकर्रर की गई, मगर दुकानदारों ने मौका का फायदा उठाते हुए कीमत 320 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। घरेलू सिलेंडर की सरकारी कीमत 2660 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद बाजार में यही सिलेंडर 3650 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्ख पर एलपीजी दस्तयाब न होने के बाइस घरेलू सारिफीन शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया की गैर मुअस्सर कार्रवाइयों की वजह से गिरा फरोश बेलगाम हो चुके हैं। हुकूमत जो 7 रुपए वधाए इन्हें वाला 4 रुपए वधा के अब तो 330 रुपए कर दे, 20 रुपए कर दे। इन नहीं होना चाहिए जेरी हुकूमत रेट वधा हूँ हुकूमत रेट चलना इस वास्ते सारे इस्तफा के तुआरे नाल थे अच्छी गल हुकूमत जी गल हुकूमत कंट्रोल करे, इंतजामिया इतवाले जे वो कंट्रोल करन। शहरियों ने हुकूमत और जिलाई इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि एलपीजी की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि अवाम को मजीद महंगाई के बोझ से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। उधर मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को रोकने में नाकाम है। शहरी आज भी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। दुकानदारों का सरकारी रेट लिस्ट को मानने से साफ इनकार, जबकि इंतजामिया दुकानदारों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई करने से कासिर है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार, सरकारी निर्खों और मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फर्क। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 19, मूली और शलजम 20 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में आलू, मूली और शलजम 35 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी निर्खों में पालक 35, बैंगन और प्याज 50 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में पालक 50, बैंगन और प्याज 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 74, टिंडे 60, करेले 160 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में टमाटर 90, टिंडे 80, करेले 180 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खों में चाइना लहसन 425 और अदरक 262 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में चाइना लहसन 500 और अदरक 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फल भी आम शहरियों की पहुंच से दूर। सरकारी निर्खों में अमरूद लाड़काना 160, कंधारी अनार 500, स्ट्रॉबेरी 670 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में अमरूद लाड़काना 180, कंधारी अनार 650, स्ट्रॉबेरी 1200 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में बेर 90, सेब 336 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में बेर 200, सेब
सेब 400 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक किन्नू 100 रुपए फी किलो और केले 162 रुपए फी दर्जन है। चिकन का सरकारी इंडेक्स 476 रुपए फी किलो जबकि अंडे 314 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करे ताकि मार्केट में खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट आइंदा 3 रोज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। शबे बारात 5 फरवरी और जुमे की छुट्टी के बायस अद्वियात की तरसील मुतासिर होने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट 4, 5 और 6 फरवरी को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रहेगी, जिससे जो है वो पूरे जनूबी पंजाब में मेडिसिन की तरसील मुतासिर होने का खदशा है। और इस तमाम तर सूरत पर बात करते चले हैं तो होलसेल मेडिसिन मार्केट के सदर सलमान खान हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका 5 फरवरी, शब बारात और फ्राइडे तीनों इकट्ठी आ गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहाँ जो एक इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं रिटेलर्स के, वो 3 to 4 डेज होते हैं। ये नहीं कि वो डेली बेसिस पे आके मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनका एक अच्छा इन्वेंट्री लेवल होता है। और इस तरह के सिनेरियो हमारे पास रूटीन में बनते रहते हैं, जैसे कि ईदैन हो गई, मुहर्रम हो गए। तो इसमें हम फिर ये है कि हमारा जो एक मैकेनिज्म है मार्केट का, वो ये है कि हम उन्हें इत्तला करते हैं बर वक्त 1 वीक पहले कि आगे हमारी 3 छुट्टियां इकट्ठी आ रही हैं, तो उसके मुताबिक वो अपनी इन्वेंट्री लेवल को एक दफ़ा रिफिल कर लेते हैं। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल रहमान वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। छुट्टियों का शेड्यूल है, ये आज से नहीं, ये अरसा 25 साल से जो है चला आ रहा है और ये डिसाइडेड हॉलीडेज हैं जिन्हें हम शेड्यूल हॉलीडेज कहते हैं। और ये इसकी हम सर्कुलर की सूरत में मार्केट को भी और अपने कस्टमर्स को भी इंटीमेशन हमने कर दिया हुआ है ताकि वो अपने इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करके रखें। बाकी जहां तक बात है, देखें, हमारा होलसेलर का एंड यूजर के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है रिटेलर के साथ। रिटेलर की इन्वेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। अब रिटेलर अगर इस छुट्टियों का बहाना बना के वो अगर एंड यूजर से कोई ओवर चार्जिंग करता है तो महकमे मौजूद हैं जो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मुलजिम उवैस नाजिर कुरैशी की कबल अज गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम पर फायरिंग से 4 अफराद को जख्मी करने का इल्जाम है। शहरी मुजाहिद और नुसरत बीबी भी फायरिंग से जख्मी होने वालों में शामिल है। गिरफ्तारी के दौरान वकील के क्लर्क की मुलजिम को फरार करने की कोशिश। अदालत आलिया का बार क्लर्क को मोहम्मद अमजद के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का हुक्म। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वाकया 2 ग्रुपों की दुश्मनी का नतीजा है। बहावलपुर में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर 16 अफसरान को तरक्की के रैंक लगा दिए गए। डीपीओ राना अब्दुल वहाब ने तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन बैच लगाए। ऑफिस में तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में सादा लेकिन पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राना वहाब का कहना था कि अहदुल्लाह की तरफ से दी गई अहद अल्लाह की तरफ से दी गई अमानत है, ईमानदारी से अंजाम देंगे। तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना की भी शिरकत। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कचहरी में आए शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर मेरिट पर हल करने के अहकामात जारी किए। सीपीओ का कहना था मसाइल को मेरिट पर हल और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए हमारे दफातर सब के लिए खुले हैं। खुली कचहरी में आए शहरियों ने अपने मसाइल तवज्जो से सुनने और हल करने की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्तान में गजाली पब्लिक हाई स्कूल बस्ती खुदादाद के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकसीम इम्तिहानात के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना तकरीब की सदारत प्रिंसिपल वकार नवीद अंजुम ने की। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक मंजूर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीम को फौकियत दी है। मलिक मंजूर का कहना था कि पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं। तलबा और तालिबात के लिए निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो कि इख्तिताम पजीर हो गई। बिजनेस इकोनॉमिक्स और आईटी पर 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद हुआ। साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं, आपको सुनवाते हैं कि उनका मजीद क्या कहना था।